A very important topic in internal security, which is expected for mains, is the topic considering cyber security. And because cyber security की बात मैंने करी है, तो यहाँ पे एक important बात करनी जरूरी है, which is India's new integrated tri-service cyber security doctrine. All right, this was in the news just around 5 days back. Our Chief of Defence Staff, Shri Anil Chauhan ji, has released this doctrine at an event. And he has spoken in length about it. Now, in this video, what I'm going to do, I'm going to discuss this in the form of a question. Question, again, this is a question. Okay, you can write this question, write this answer in 250 words. My model answer would be slightly longer than that. However, let's try to understand that what is this integrated cyber defense policy, and let's examine it in a way that we're evaluating this policy and also highlighting the challenges in this particular policy. All right. So very welcome. My name is Kuber and I'm your educator for IR, for internal security and also for essay writing. Now introduction में देखो Joint Doctrine for Cyberspace Operations हमारे CDS Chief of Defence Staff ने launch करा August 7, 2025 को, so just a couple of days back. And ये एक बहुत pivotal shift है from a very fragmented cyber response to a very coordinated, well-designed and integrated national posture. और ये डॉक्ट्रिन रिकॉग्नाइज करता है कि दैट लुक साइबर स्पेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा लैंड कंपोनेंट है, सी है, एयर है, कंसिडरिंग कि आज के टाइम पे जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रहा है और कंसिडरिंग जो आज के टाइम पे बॉर्डरलेस नेचर बना हुआ है दुनिया में, बिकॉज साइबर अटैक्स हैव नो बॉर्डर. साइबर अटैक्स अनलाइक अ कन्वेंशनल लैंड वॉर और अ कन्वेंशनल war at the sea or war through air, you have fixed territories and borders, but the wars emanating out of cyber responses, cyber security is something which goes beyond territories. It is totally borderless in nature. जहां पे hostile actors and hostile actions, they can disrupt your economy, they can disrupt your politics, and they can also disrupt strategic military installations as well. All right. और ये जो डॉक्ट्रीन है ये एक बहुत ग्रेजुअली और कंसेप्चुअल तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है फॉर द मिलिट्री कमांडर्स, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस डॉक्ट्रीन है. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज तो हमारे कंट्री में पिछले कुछ 15 सालों से इवॉल्व करते आ रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस डॉक्ट्रीन है. तो जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको भी यहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइंस मिलेंगी कि उन्होंने कैसे एक्ट अपॉन करना है, कैसे उन्होंने अपने रिस्पॉन्सेस को एग्जीक्यूट करना है, एंड ऑल्सो साइबर कैपेबिलिटीज को कैसे सक्षम तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द नेवी एंड द एयरफोर्स, which will help us from the point of view of our national interest and also from the point of view of our national security. Now पहली बात तो है इसके फीचर की बात करें, यूनिफाइड नेशनल अप्रोच है. तो एक बहुत कोहेसिव फ्रेमवर्क यहाँ पे स्टैब्लिश करा गया है जो कि नेशनल साइबर स्पेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, गोइंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज जो कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत खूबी से करते आ रही है, डिफेंड करते आ रही है. यहाँ पे जॉइंटनेस देखने को मिलेगी फॉर सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस व्हिच वुड इन्वॉल्व द ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन बाय कमांडर्स, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द 3 सर्विसेज. देन इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज. तो इसमें कंबाइंड प्रोएक्टिव ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस भी होंगे, जैसे कि एनिमी नेटवर्क्स को डिसरप्ट करना, और कुछ डिफेंसिव मेजर्स भी होंगे which is like protecting critical infrastructure. Critical infrastructure में आपके hospitals आते हैं, military installations आते हैं, power grids आते हैं, banks आते हैं. और ये जो critical infrastructure entities हैं, why are they critical? They are critical from the standpoint of India's national security and India's economy. All right? तो यानी कि offensive और defensive दोनों किस्म की capabilities ये integrated cyber security doctrine develop करने में सक्षम होगी. Then threat informed planning and resilience building. अब यहां पे प्रोएक्टिव प्लानिंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया है ताकि रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस को हम मॉनिटर कर सकें फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज लाइक द स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, क्रिमिनल्स, हैकर्स, व्हाइल आल्सो फोकसिंग कि हम सिस्टमैटिक रेजिलियंस कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे नेटवर्क्स में, ताकि हम इन अटैक से अगर कंप्लीटली बच नहीं पा रहे लेकिन जो इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है. तो मिटिगेशन के ऊपर बात की जा रही है. Then real-time intelligence integration. So this is also calling for seamless sharing and fusion of intelligence ताकि faster responses enable किए जा सके, drawing lessons from the global incidents. जैसे for example 2007 में एस्टोनिया में साइबर असॉल्ट हुआ था, 2010 स्टक्सनेट साइबर अटैक की बात करें ऑन ईरान, 2017 WannaCry ransomware जो अटैक हुआ था,
एंड इंडिया के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2020 में एक चाइनीज बेस्ड हैकर ग्रुप है रेड एको, उन्होंने जो मुंबई के पावर ग्रिड इंस्टॉलेशंस पे जो साइबर अटैक लॉन्च किया था, जो साइबर अटैक हमारे पावर यूटिलिटी पे होता है, जिसके कारण देयर वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर वन फुल डे अक्रॉस इंडिया। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट साइबर कैपेबिलिटीज। सो यहां पे बात आती है बिल्डिंग इंडियन मेड टूल्स, इंडिजिनस टूल्स बनाने की बात हो रही है, एंड मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और साथ के साथ ऐसे joint cyber capabilities would also involve the private sector also, so that we can all figure out a way and we can all increase our operational responses. क्रॉस डोमेन एंड एसिमेट्रिक कंसिडरेशंस, इसमें एक्नॉलेज किया जाएगा कि साइबर स्पेस के बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। वी आर लिविंग इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर अटैक्स। Of course, we have well-defined territories, the land territories, the sea territories, our airfields and all that, the airspace and all that. Everything is very well-defined. But when it comes to cyber security, nothing is defined, right? And since it's a non-conventional form of warfare, since it's a very asymmetrical form of warfare, therefore there would be a lot of civil and military overlap. So this policy falls short. I'll be honest, this policy is falling short of talking about how this civil military fusion will help in order to make India more robust and strong to prevent itself from such disruptive actions and offenses by non-state and state entities in the field of cyber domain. ये डॉक्ट्रीन बहुत सब्सटैंशियल पोटेंशियल होल्ड करता है ताकि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बूस्ट मिले बाय एड्रेसिंग द फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ द प्रीवियस रिस्पॉन्सेस, और साइबर सिक्योरिटी को, साइबर स्पेस को एक बहुत कोर कंपोनेंट, कोर एलिमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस हाईलाइट करता है। अब एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 में बनी थी, डिफेंस साइबर एजेंसी है 2019 में बना था, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 में। अब ये कलेक्टिवली ये जो इनिशिएटिव्स हमने ऑलरेडी, इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज जो हमने लॉन्च करी थी, इनैक्ट करी थी, उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए ये जो साइबर सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन है ये बनाई गई है। एंड बाय प्रमोटिंग जॉइंटनेस इट कैन ऑल्सो इनेबल मोर एफिशिएंट रिसोर्स यूज, rapid multi-domain operations, and also deterrence against hybrid threats such as those coming from China. For example, the state-sponsored espionage groups like the Red Eco or the APT10, which have carried out attacks. For example, the 2020 में जो मुंबई के जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पे जो अटैक किया था रेड एको ने। इनफैक्ट इसके बारे एक मेंशन स्पेशल ऑप्स, जो कि एक वेब सीरीज है हॉटस्टार पे, जियो हॉटस्टार पे जो एक वेब सीरीज आई है स्पेशल ऑप्स 2.0, जिसमें के मेनन है, काफी अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। इसमें इसका जिक्र किया गया है, रेड एको ग्रुप का उसमें भी जिक्र किया गया है। अगर नहीं देखा तो जरूर देखना, बिकॉज स्पेशल ऑप्स 2.0 में भी कैटेगोरिकली साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज हमारे कैसे हैं और साइबर अटैक्स के बारे काफी अच्छी कवरेज करी गई है, तो देखना अगर आपको टाइम लगे। सो ये जो इंटीग्रेटेड पोस्चर है, दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हो गया, पावर हो गया, बैंकिंग हो गया, और हमारी रेजिलियंस को भी बढ़ाएंगे और पोटेंशियली इंडिया को उस दर्जे पे लेके आएंगे जहां पे इंडिया is also doing well. India is also taking steps proactively along with advanced nations like America and China. ठीक है, अमेरिका का साइबर कमांड इंटीग्रेशन 2009 से है, 2009 से है, और चाइना का इंटीग्रेटेड जो साइबर डिफेंस मैकेनिज्म है वो 1998 से चलता आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि ये एक बहुत प्रोएक्टिव स्टेप है towards self-reliance and also strategic autonomy, specifically amid the rising cyber incidents. For example, 66% increment देखने को मिला है in the defense targeted attacks. लेकिन इसका potential is also being tempered by significant implementation challenges. अब यहाँ पे कुछ challenges की बात आती है। पहली बात तो ये आती है कि देखो यहाँ पे structural cultural barriers है। ऐसे तो हमने एक डिफेंस साइबर एजेंसी भी बनाई थी 2019 में, तो वो जो डिफेंस साइबर एजेंसी थी, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन एजेंसी विच इज इंटीग्रेटेड फॉर ऑल द 3 सर्विसेज, बट हाउएवर द आउटकम्स अचीव्ड ऑफ द डिफेंस साइबर एजेंसी इज नॉट वेरी गुड। आई मीन द आउटकम्स अचीव्ड आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, primarily because of bureaucratic inertia and primarily because कि सही मायने में तीनों सर्विसेज के बीच में डिफेंस साइबर एजेंसी में भी इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिली थी। देन पॉइंट नंबर 2 आता है टैलेंट शॉर्टेज की बात आती है। हमारे पास 10 लाख साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे जो हमारे पास नहीं है, और हम क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लैक कर रहे हैं, हम वर्कफोर्स नहीं बिल्डअप कर पाए हैं, सो देयरफॉर दैट इज वन चैलेंज फॉर अस। एंड प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन बढ़ रहा है, हम गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ल्यूक्रेटिव
पोजीशंस और लिक्रेटिव ऑफर्स नहीं लेके आ पा रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रह के साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करें। बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर की साइड से। ऑल्सो इंडिया में ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कम है, और जो है दे वुड ऑब्वियसली आस्क अ लॉट ऑफ मनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकता है। देन और थर्ड एक चैलेंज आता है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हम कह तो रहे हैं कि इंडिजिनस कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, कि हम इंडिजिनस कैपेसिटीज को और बिल्डअप करना चाहते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी जो जितनी भी लाइक हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अभी भी ज़्यादातर वो फॉरेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चैलेंज आता है कि जो कॉन्टूर्स है ऑन द सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन और द सिविल मिलिट्री फ्यूजन, उसके बारे कैटेगोरिकली यहाँ पे बात नहीं करी गई है कि वो कैसे होगा। बिकॉज अभी भी जो ज्यादातर जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो देयरफॉर यहाँ पे इस बात की क्लैरिटी नहीं है, एंड जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं आती है तब तक ये पॉलिसी ऑल्दो वेरी प्रॉमिसिंग, यहाँ पे कुछ लूपहोल्स हैं, गैप्स हैं जो कि रहेंगे, एंड इसका फायदा हमारे एनिमी स्टेट्स उठा सकते हैं, हमारे एनिमी जो कंट्रीज हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, वो उठा सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर and we have to leave no ambiguity in terms of discussing how the private public sector contribution can help in order to boost the credibility of this cybersecurity doctrine. So this is all. I'll see you very soon in the next videos. Thank you so much.